Morning students, how are you? I hope all are fine and well. Dear students, we should have the aim of our life. Let us talk some motivational, then we'll start the chapter. So everybody in the life since you are born in this beautiful world, so all we should have the aim of our life, object of our life, motto of our life. You should take such dreams, and their dreams should reflect in your body, language, in your behavior, in your conversations, and you act like that you have become so and so officers. Suppose you want to become IS officer, suppose you want to become IPS officer, suppose you want to become doctor, engineer, whatever the case may be, but you should concentrate the object of your life and should be proud to your parents. So we should start the chapter 4, remaining chapter 4. Half of the chapter I have studied yesterday. So what we have studied yesterday, we have read about map, what is map, how to use the map, definition of map, importance of map, which map provide more information, and types of map, political, physical and thematic. Today we will study about the components of map. So there are three components of map. These are distance, directions and symbols. Distance. See distance reduce the entire world. What distance? What will do distance? Distance it reduce the entire world or part of the world into a sheet of paper. In this topic, we read how to measure the distance, what is scale, what are the large scale map, and what are the small scale map. Which map provide more information and which map how to draw the map. So see the whole world we can put in the sheet of paper. How? So there is a scale. What is scale? Scale is a ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Suppose our house and school is 20 km from our house, so we will use 2 centimeter. We cannot show the 20 km on the map. For what we will do? We will use the scale. 1 centimeter is equal to 10 km. So we will show what is distance. Distance will be 2 centimeter. 2 centimeter means 1 centimeter is equal to showing here 5 km. I told you 10 because I have taken the 20 km. Instead of 10, I have taken the 20. So 1 centimeter is equal to 10 km or 5 km. If you are taking 10, then 5. If you are taking 20, then it will be 10. So this is the actual. We deduce the distance carefully, and this is the actual distance. Now see what is the small scale map and large scale map. Suppose we want to show the continent, Mahadip, continent and countries on a sheet of paper. Then we will use, for example, we will see 5 cm of the map shows 500 km. The ground is called kilometer of the ground. It is called a small scale map. Means 5 cm. We have reduced the distance
500 kilometer into only 5 centimeter. So when the big area showing in centimeter, we can say it small scale map. Small scale map provide less information while area is less and showing, suppose here it 5 centimeter is equal to 500 meter. 5 centimeter into 500 meter, just half kilometer. And above it 1 centimeter is equal to 100 meter हो गया. And here 1 centimeter is equal to 100 meter. So we can put more information in the large scale map, but in small scale map we cannot put all the information. So what is the difference between large scale map and small scale map? Large scale map give more information than the small scale map. So students, what we learn in this, डिस्टेंस क्या करती है हमारी, डिस्टेंस पूरे वर्ल्ड को स्केल के अनुसार उसको छोटा करके शीट ऑफ पेपर में डाल देते हैं और उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर 100 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर पर 5 किलोमीटर, जो भी हमें जो चाहिए, क्योंकि पूरी डिस्टेंस को हम मैप में नहीं दिखा सकते, इसलिए स्केल का यूज करते हैं. स्केल की डेफिनेशन आपको जानना चाहिए. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द टू बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. एग्जाम्पल आपको बता दिया घर का, स्कूल का. जैसे आपका घर से स्कूल का 10 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर दिखा दिया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. तो 2 गुना 5 बराबर 10 किलोमीटर हो गया आपका. इसी प्रकार बहुत ज्यादा अपने पास बड़े महाद्वीप हैं, देश हैं, महासागर है, इनको दिखाने के लिए हम स्मॉल स्केल मैप का काम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भरने 100 किलोमीटर दिखाया, तो 500 बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर. इसमें क्या है, स्मॉल स्केल मैप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल नहीं सकते, लेकिन एरिया छोटा है और छोटे एरिया में हम लार्ज स्केल मैप का यूज करेंगे. यहाँ पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं. 5 सेंटीमीटर में हमने यहाँ सिर्फ 500 मीटर लिया और यहाँ 5 सेंटीमीटर में हमने 500 किलोमीटर लिया. तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ कितनी 100 मीटर हुई और यहाँ 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर हो गए थे. 500 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर हो गए थे. तो वहां पर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर दिखाना और यहाँ 1 सेंटीमीटर में आपको 100 मीटर दिखाना. तो इसमें आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो. इसमें गाँव के बारे में, टाउन के बारे में, आप रोड, सड़क, हॉस्पिटल सब दिखा सकते हो, बट उसमें हम लोग स्मॉल स्केल मैप में नहीं दिखा सकते. इसलिए विच मैप इज मोर इम्पोर्टेंट, विच मैप इज गिव मोर इन्फॉर्मेशन, लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन. इफ क्वेश्चन कम्स which map provide us more information, so we simply answer is large scale map provide us more information than the small scale map. Okay, next point is directions. So direction, everybody know how many directions are there? There are 4 directions. In direction, what are the continental point? What are the intermediate direction? What is compass? So the 2-3 things will denote in the directions. So dear students, you are shown in map the right on the top of the corner to write the N. N always show the north side. Map का it shows the indicate the north directions. This arrow, ये जो arrow है always show the north directions. So it is called the north line. By putting the compass needle to north side, or you yourself can stand by making your face towards the north. तो north आपके फेस नॉर्थ हो गया एंड bottom of the map is south. If you are facing towards north, then your left hand will indicate, what will indicate is west, पश्चिम दिशा इंडिकेट करेगा, एंड आपका राइट हैंड वो आपको पूर्व दिशा
बताएगा। आप एक करके देख सकते हो, नॉर्थ साइड एकदम मुंह करके देखो और आपके पैरों की तरफ साउथ हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम आएगा और राइट साइड में आपका पूर्व आ जाएगा। See here we have given the map. See this is north, this is north, this is south, this is west and this is east. ये आपको दिया हुआ है, नक्शा बनाया हुआ है। ये मार्क है, जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ मार्क करते हैं, किस तरफ जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन है, कॉन्वेंट सेंट्री है, प्लेग्राउंड है, स्कूल्स है, ये दिखा रखा है आपको। तो मैं अब आई वाज टेलिंग अबाउट द व्हाट इज कार्डिनल पॉइंट। तो सी स्टूडेंट्स, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दैट इज कॉल्ड इन दी डायरेक्शन वी कॉल देम कार्डिनल पॉइंट। इन चारों दिशाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन के साथ में ही क्या होता है, चार और डायरेक्शन होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। सपोज इधर देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो यहां से आप देखो, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट कर दो और यहां से नॉर्थ वेस्ट कर दो, तो दो तो ये होगी, तो आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन दो होगी। एक साउथ ईस्ट कर दो, एक साउथ वेस्ट कर दो, 4 होगी। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी 4 होते हैं और इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी 4 ही होते हैं। सपोज क्वेश्चन कम्स, how many intermediate direction are there? So we will simply write 4. If question comes, what are the coordinate points? We will tell north, south, east or west are the coordinate point. Now see the compass. This is the compass. compass का जो नेक होता है, फेस होता है, वो हमेशा इसका जो होता है दिशा नॉर्थ बताता है और इसका जो लेग है वो हमेशा साउथ बताता है। एक मैग्नेटिक है। We can find out the direction of a place with the help of compass. It is an instrument. It is simply an instrument to find out the main direction. What is main direction? Main direction is north. It is magnetic needle, always point towards the north-south direction. एक मैग्नेटिक नीडल होती है, इसकी जो सुई होती है वो हमेशा मुंह नॉर्थ की तरफ रखती है, नॉर्थ साउथ की मुंह हमेशा कहीं कैसे घुमा दो उसको, आप उसको घुमाओगे तो भी नॉर्थ साइड में आके अपने आप रुक जाती है। इसलिए हमें पता लगता है इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो जाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4 होती हैं। कोऑर्डिनेट जो क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन कितनी? वही 4 होती हैं। वो हमको मैंने अच्छे से समझा दिया। यहाँ अपनी उंगली रखो, उंगली के साथ में एक तो नॉर्थ ईस्ट कर दो और नॉर्थ वेस्ट कर दो, इधर से साउथ ईस्ट कर दो और साउथ वेस्ट कर दो। Now come the third important components of map, that is symbol. Symbols is very important in map and we use symbols in daily our life. Which symbol used for what? What is conventional symbols? See, we cannot put all the roads, buildings, railway network on the map. So we use symbol in case of buildings, railway, hospital, temple. So some symbols we have international agreements, which and universal maps have universal language that can understood by all. There is an international agreement regarding the use of symbols. These are called conventional symbols. If question comes, what is conventional symbol? So you write some symbols have an international agreement regarding the use of the symbols. These are called conventional symbol. See some symbols, conventional symbols. Railway line, broad gauge को ऐसे दिखाते हैं, मीटर गेज
ऐसे दिखाते हैं, एंड रेलवे स्टेशन को ऐसे दिखता है। रेलवे स्टेशन, रोड, मेटल रोड ऐसी होती है, अनमेटल रोड ऐसी होती है। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसी होती है, स्टेट की बाउंड्री ऐसी होती है, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऐसी होती है। रिवर ऐसी होती है, टैंक ये है, कनाल है, और ब्रिज है। ब्रिज का सिंबल है टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास। ये इंटरनेशनल सिंबल है, इनको कन्वेंशनल सिंबल भी बोलते हैं। कुछ सिंबल्स के लिए हम लोग कलर यूज करते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सम पर्पज। फॉर जनरली ब्लू इज फॉर वाटर, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountains, yellow for places, and green is used for plants. So some color are automatically, if you see the blue, then you will understand this is water. If you will see the brown, you will understand this is the mountains. If you see yellow, then you will understood this is the plateau. And if you will see green, it means there are plains, maidans. So students, I hope you understand what is symbols, how to use, what is conventional symbols, and symbols are very important in our life. We are use them daily. Next, come to the look here. This is a map. Look at 4.4. Some question has given. See, these are symbols. See, in which direction is the river flow? This is the rivers coming from east to south. Which direction is flowing? It is flowing the south. What kind of road passes by the side of village? What village? Dumri. This is the Dumri, or this is the road. तो दिस इज विच टाइप ऑफ मेटेलिक रोड? मेटेलिक रोड हमने वी हैव सीन मेटेलिक रोड किस टाइप की होती है? दिस इज द मेटेलिक रोड, ऐसी 2 लाइन वाली, तो ये होगी मेटेलिक रोड। देन कम वन ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर शिफ्ट? किस टाइप की जो रेलवे लाइन है? सुंदरपुर ये गांव है, ये रेल लाइन ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, कैसी है? तो देखो ऐसी लाइन कहाँ दिखी थी हमको? ये हमने ये देखी है, ये वाली। तो ये कौन सी है? ब्रॉड गेज। कौन सी लाइन है? ब्रॉड गेज। ये ब्रॉड गेज है। और क्या क्वेश्चन है? उनके साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग। छतरी कहाँ है? चर्च कहाँ है? पॉन्ड कहाँ है? मॉस्क किस साइड? आपको क्या इस ट्रैक के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ बताना है। जैसे ये मॉस्क्यू है तो कहाँ है? नॉर्थ में है। ये क्या? चर्च है, साउथ में है। रेलवे की साइड साउथ में हो गया, मंदिर हो गया। तो आपको नीचे देखे नॉर्थ साउथ, इसको मैं बारे नॉर्थ और साउथ के बारे में बताना है। नाउ कम टू द स्केच। स्केच इज रफ ड्राइंग। स्केच क्या होती है? रफ ड्राइंग होती है। सपोज आपको कहीं जाना है, किसी दोस्त के घर में जाना है, तो मैं आपको ऐसे बताऊं कि ठीक है, आप यहाँ से आधा किलोमीटर से जाना, फिर साउथ में जाना, फिर नॉर्थ में जाना। तो दिस इज ए रफ ड्राइंग विदाउट सच रफ ड्राइंग विदाउट स्केल। मतलब इसको हम मेजरमेंट नहीं करते, हम ऐसे ही पेपर में उतार के बताएंगे आप ऐसे जाना ऐसे जाना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको स्केच बोलते हैं। स्केच इज ड्राइंग मैनली यूज्ड टू मेमोरी बेस। ये हमारी याददाश्ती के ऊपर रहता है एंड इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। Sometimes rough drawing is required on area to tell very particular place is located with the respect to other place. तो हम इसके बारे में बताते हैं कि ऐसे जाना। तो स्केच हो, स्केच क्या हो गया? रफ ड्राइंग होगी, मेमोरी की अपनी याददाश्ती के ऊपर होगा, मेमोरी बेस होता है और आपको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको जाना है, ऐसे करना। ये मतलब इसमें स्केल मेजरमेंट नहीं किया जाता, सिंपल। अब आता प्लान। लास्ट पॉइंट है आपका प्लान। प्लान भी एक ड्राइंग है ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल मैप। मतलब प्लान क्या होता है? ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल मैप। इनको ड्राइंग करते हैं, स्मॉल एरिया को एक लार्ज स्केल मैप ड्राइंग करते हैं। बट ये जो है लार्ज स्केल मैप भी पूरी चीजें हमको नहीं बता पाता। सपोज किसी कमरे के लिए जाएंगे तो विड्थ देखनी है, तो इसके लिए हमको प्लान रेफर करना पड़ेगा, विच कैन नॉट शोन इन मैप। मतलब ये सब मैप में नहीं दिखाई जाती। एट दैट टाइम वी विल यूज द रेफर या वी विल यूज ड्राइंग
drawn onto scale called a plan. At that time, we can refer drawing drawn to scale called a plan. So, students, I hope this chapter is clear. What is map? Types of map, components of map, in which distance, how to use the distance, how to हमने distance कैसे नापते हैं, स्केल क्या होता है, ये हमने उसके बारे में पढ़ा, कैसे स्केल को मेजरमेंट करते हैं। फिर हमने डायरेक्शन पढ़ी, डायरेक्शन के बारे में हमको कितनी डायरेक्शन होती है, कार्डिनल पॉइंट कितनी होती है डायरेक्शन के, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन कितनी होती है, ये पढ़ लिया। तो उसके बाद हमने सिंबल्स पढ़े, सिंबल्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सम सिंबल्स जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अनुसार यूज करते हैं, उनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। फिर ये है दीज आर द कन्वेंशनल सिंबल। सपोज क्वेश्चन कम्स, ऐसा आपको ऐसा चित्र देंगे, ये किस टाइप का सिंबल है, तो यू कैन सिंपली राइट कन्वेंशनल सिंबल्स। Then the sketch rough drawing और प्लान। किसी प्लान में किसी भी कमरे की आपको लेंथ चौड़ाई देखनी है तो हम प्लान का रेफर करते हैं। कल हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन डिटेल्स में स्टडी करेंगे। यहीं पे आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप? आई होप यू अंडरस्टैंड देयर आर थ्री component of a map: distance, direction, and symbols. So it will be very easy to answer. Anybody can give the answer. Thank you very much.